Welcome students. Today we are going to continue with the miscellaneous examples of chapter number 8 binomial theorem. Correct. So let's start with example number 10. Find the term independent of x in the expansion of 3 by 2 x square minus 1 upon 3x whole raised to 6. What we are supposed to find? Independent term. And how we can do that? So we have already understood the concept, but before that let's write the general term. What could be the general term of this binomial expansion? So it will be 6cr a raised to n minus r, यानी कि 6 minus r and minus 1 upon 3x raised to r. First simplify this, get something of the power of x, and then we'll see what we are supposed to do. So 6cr, it will be 3 by 2 raised to 6 minus r into x raised to 6 to the 12 minus 2r minus 1 raised to r, 3 raised to minus r and x raised to minus r. So if I combine all these things, so 6cr, 3 raised to 6 minus 2r, 2 raised to, let me write in denominator only, है ना, 2 को नीचे ही रखते हैं फिलहाल. So divide में 2 raised to 6 minus r, x raised to 12 minus r यानी कि 12 minus 3r and minus 1 raised to r. Correct. Now to find independent term of x, यानी कि ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो independent of x हो, यानी कि power of x should be 0. To get term independent of x, the indices of x should be 0. That is 12 minus 3r equals to 0. So r equals to 12 by 3 यानी कि 4, है ना. इसका मतलब कि हमें कौन सी टर्म मिलेगी? फिफ्थ टर्म मिलेगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी. इट विल बी 6c4 3 times 4 to the 8. So it will be minus 2 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 रेज टू 4. सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, सो 3 to the 6 का स्क्वायर, है ना. एंड 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36. बाय सिंप्लीफाइंग दिस, सिंप्लीफाई में करेंगे क्या? तो 6 इंटू 5, 4 से कट, 2 इंटू 1 एंड 1 अपॉन 36. So 6 6 are 36 and you will be getting over here is 5 by 12. आपका independent term होगा 5 by 12. Are you getting me? So देखो कुछ नया नहीं करना है, you just need to get the general term. General term में आपको make sure करना है that the power of x should be 0. So वो हमने 0 ले लिया, we got the value of r, we substitute the r, we got the fifth term as an independent term of x. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे कोई x बचा नहीं है. Isn't it? You can pause the video and note it down. Now let's go for the next problem. That is example number 11. Correct. What do we have? If the coefficient of a raised to r minus 1, ar and a raised to r plus 1 in the expansion of 1 plus a raised to n are in arithmetic progression. So सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म फाइंड कर लो. So what will be the r plus 1? So it will be ncr and I can say a raised to r, है ना. और देखो हमें क्वेश्चन ने बोला ये कि a raised to r का कोफिशिएंट क्या होगा, लेकिन साथ साथ में उन्होंने बोला है कि भाई a raised to r minus 1 का भी क्या होगा. तो डेफिनेटली हियर इट विल बी ncr minus 1. एक वैल्यू बढ़ा दो यानी कि tr. और दूसरा बोला है कि a raised to r plus 1 का क्या होगा. So if I increase NCR plus 1 over here और a raised to r plus 1, तो यहाँ r का r plus 1 r minus 1 से बढ़ा के इधर एक बढ़ाओगे तो r plus 2. नेवर माइंड, हमें यहाँ पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इन कोफिशिएंट से ही इंटरेस्टेड है. सो हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ
a रेज टू r माइनस 1 AR एंड a रेज टू r प्लस 1 R क्या है हमारे लिए? NCR माइनस 1 NCR एंड NCR प्लस 1, करेक्ट। और उनको बोला है R इन, लेट्स नॉट राइट लाइक दिस, हम बोल देते हैं कि दिस कोफिशिएंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? ABC यानी कि 2B 2 टाइम्स NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। आपको इसे सॉल्व करना है और प्रूव दैट करके एक इक्वेशन दी हुई है, वो हमें लानी है n स्क्वायर माइनस n टाइम्स 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। करना कुछ नहीं है, इसे एक्सपांड ही करना है। लेट्स गेट गोइंग विद दैट, है ना। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इट्स अ बिग वन तो ज्यादा जगह चाहिए। सो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो तीनों तीन के न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है, आई कैन इजीली रूल दैट आउट, उसको निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो r माइनस 1 r प्लस 1 और r, तो उसमें सबसे छोटा है r माइनस 1, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। लेट्स कीप इट एज इट इज। n माइनस r प्लस 1, n माइनस r माइनस 1 और n माइनस r, इसमें सबसे छोटा है n माइनस r माइनस 1, यानी कि इसे हमें वहां तक ले जाना पड़ेगा n माइनस r प्लस 1, n माइनस r एंड n माइनस r माइनस 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 को आपको r माइनस 1 तक लाना है इंटू n माइनस r माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स n फैक्टोरियल तो चला गया, r का r माइनस 1 और n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप आप लोगों को वहां तक दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। नाउ सी r माइनस 1 r माइनस 1 r माइनस 1, है ना। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि लेट से हमने r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, कितना बचा यहाँ पे? तो के 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 अपॉन यहां से r और r प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 अपॉन r r माइनस 1 n माइनस r n माइनस r माइनस 1, क्या आएगा? माइनस 1। सो नाउ आई कैन इजीली कैंसल देम आउट। अब मैं जो है वो उनको इजीली कैंसल आउट कर सकता हूं, और जैसे वो कैंसल हो जाते हैं हमारे पास बचता कितना है वो हम यहां पे लिख देंगे ऊपर। सो दिस टू गेट कैंसल वी लेफ्ट विद दैट स्क्वायर ब्रैकेट n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, नीचे बचा है r इंटू n माइनस r। यहां पे एलसीएम लो तो इट विल बी r इंटू r प्लस 1 प्लस n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन r इंटू n माइनस r, और इनके नीचे भी n माइनस r प्लस 1 n माइनस r r r प्लस 1। सो n माइनस r एंड r भी कट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे है r स्क्वायर प्लस r, ये है n स्क्वायर माइनस nr प्लस n माइनस rn माइनस r स्क्वायर माइनस r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n माइनस 2r प्लस 2। अब थोड़ा सा ध्यान से पेशेंटली इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आपको जो चाहिए वो बहुत यूनिक है और हमें वो आराम से फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, तो ये सब एक साइड ले जाते हैं, डिपेंडिंग के n स्क्वायर पॉजिटिव कहाँ यही है। चलो सो n स्क्वायर nr nr यानी कि 2nr प्लस r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर गॉट रूल्ड आउट। ओहो, r स्क्वायर वाली टर्म तो हमारी बची ही नहीं, ऐसा
नो 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 नो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आर स्क्वायर प्लस आर एन आर सॉरी एन स्क्वायर एन आर प्लस एन माइनस आर एन आर स्क्वायर और 1, तो माइनस आर स्क्वायर ही है और यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर है। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, दिस आर स्क्वायर कैनॉट बी कैंसल्ड, दिस इज प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस आर, सो हियर ऑल्सो आर स्क्वायर इज नॉट रूल्ड आउट, स्टिल इट इज प्रेजेंट। ओके, वेरी गुड, वरना अभी कुछ लोचे हो जाते। अगेन साइन कन्वेंशन, एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, या करेक्ट। सो दिस विल बी माइनस 2nr प्लस 2r स्क्वायर, r और r कट हो गया, n बचा है माइनस 2n प्लस 2r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप कोई टर्म लेफ्ट आउट नहीं हो गई हो। लेट्स आइडेंटिफाई। सो n स्क्वायर, r वाली टर्म कौन सी है? ओके, पहले तो और एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2nr है ना, प्लस n माइनस n प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो मुझे पीछे जो है ना वो एक्चुअली 4r स्क्वायर चाहिए और हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिल रहा है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाकी वैसे तो अच्छा जा रहा है, आई होप कि हमें अच्छा ही मिलेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। 2nr और n, वी नीड n कॉमन और 4r प्लस 1, तो ये 2r का क्या करेंगे? अरे शिट, सॉरी माय बैड। क्या हुआ पता है? हमने r प्लस 1 तो मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके बिना हम आगे बढ़ गए। चलो थोड़ा पेशेंटली काम लेते हैं। तो r स्क्वायर प्लस r प्लस n स्क्वायर माइनस एन आर प्लस n माइनस आर एन प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो एन आर प्लस एन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर प्लस 1, तो ये आर तो इधर ही उड़ गए है ना, ये स्क्वायर नहीं है, सिंपल है। अब यहां पे जितना हो सकता है उतना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन ही रखे हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 2nr, ये प्लस आर और ये माइनस आर भी कट हो गया, करेक्ट। एन स्क्वायर यूज हो गया, ये यूज हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 2nr प्लस 2n माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2। नाउ ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, सो n स्क्वायर 2nr हो जाएगा माइनस 4nr, 2r स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस n माइनस n विल बी माइनस n और माइनस 2n माइनस n होगा, है ना, करेक्ट। लेट्स सी, और प्लस 2 भी इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से आंसर आ चुका है। एक टर्म को हम थोड़ा आगे पीछे लिख लेते हैं, जैसे कि ये, तो लेट मी से माइनस n प्लस 4r स्क्वायर। तो देखो पीछे 4r स्क्वायर माइनस 2 सेट हो गया, यहां से माइनस n कॉमन निकालो तो इट विल बी 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना है, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई नो कि यहां से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, जस्ट बिकॉज वी फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई दिस r प्लस 1 विद दिस वन एंड ओवर हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी टर्म सिंपल सी 3 ही आई थी और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस फील हुई। होता है, इट हैपेंड समटाइम, मिस्टेक is bound to happen, isn't it? But this is how you are supposed to exactly solve this kind of a problem. So please make sure that you do it in proper way, and you can pause the video and note it down. Now let's have a look at example number 12. What do we have? So that the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n
is equal to the sum of the coefficient of two middle terms in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. Now see, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. आपको फाइंड करना है इसका मिडल टर्म एंड वॉट एवर द कोफिशिएंट यू विल गेट फॉर दिस पर्टिकुलर मिडल टर्म वो आपका इक्वल होगा सम ऑफ द मिडल टर्म ऑफ दिस टू. यहाँ पे जो दो मिडल टर्म मिलेंगे ना उनके कोफिशिएंट का सम से इक्वल होगा, है ना. सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? सबसे पहला तो कि देखो यहाँ पे पावर मुझे दिख रहा है 2n इन द एक्सपांशन 1 plus x raised to 2n, the indices is 2n, which is odd. Therefore, only one middle term will be there. Middle term will be there. और कौन सी होगी? तो that is 2n by 2 plus 1, यानी कि n प्लस 1 टर्म. ये आपकी मिडल टर्म होगी. तो कैसे फाइंड करोगे? तो कि भाई n प्लस 1 टर्म फाइंड करना हो तो इट विल बिकम 2ncn. a का पावर मतलब m1 का तो कोई मतलब है नहीं और x का पावर n हो जाएगा. सिंपल. तो आपको यहां पे मिडल टर्म का कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इस क्या मिला हमें? 2ncn. अब इसके जो दो मिडल टर्म मिलेंगे, क्यों दो बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे यहां पे पावर 2n था तो उसको हमने विच इज इवन, है ना. तो हमें एक ही मिडल टर्म मिलेगा तो वो इस तरह से. तो वैसे यहां पे इन द एक्सपांशन ऑफ दिस वन इट इज 2n माइनस 1, तो उसे हम बोल सकते हैं विच इज ऑड. करेक्ट. एंड देयरफॉर two middle term will be there. Middle term will be there. और कौन सी होगी? That is 2n minus 1 plus 1 by 2 and 2n minus 1 plus 3 by 2. So it will become 1 का 2n by 2 मतलब nth टर्म सीधे सीधा, है ना. दैट इज एंड यहां पे भी क्या होगा कि भाई 2n माइनस 2n प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा तो इट विल बी n प्लस 1 टर्म. तो इन दोनों के लिए आपको टर्म ढूंढनी है. सो n टर्म क्या होगी? 2n माइनस 1 cn माइनस 1. सीधी बात है ना. अगर r प्लस 1 होता है या n प्लस 1 है तो n है तो एक टर्म रिड्यूस तो करनी पड़ेगी ना. इंटू x रेस टू n माइनस 1 और tn प्लस 1 होगा 2n माइनस 1 cn x रेस टू n. अब इनके कोफिशिएंट का सम, करेक्ट, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज क्या आ रहा है? 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn. ये आपका सम आ रहा है. लेकिन हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल्स टू दिस? तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा थियरम याद दिलाता हूं. मैंने आपको एक थियरम के फॉर्म में समझाया था कि NCR माइनस 1, है ना. वी नो दैट, क्या हमें पता है? NCR माइनस 1 प्लस NCR तो ये हो जाता है n प्लस 1 CR. तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे देखो 2n माइनस 1 CR माइनस 1, 2n माइनस 1 CR, सॉरी n माइनस 1 और n है यहां पे, n माइनस 1 और n है. तो डेफिनेटली CN आएगा और इसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगा 2n एंड दैट इज नथिंग बट अवर दिस वन. सो सम ऑफ दिस टू, यानी कि ये वाले जो एक्सपांशन है उसके जो मिडिल टर्म्स है उसका अगर आप सम करोगे उसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का तो वो डेफिनेटली इक्वल होगा आपके ये वाले यहाँ पे जो था ना उसके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट से. करेक्ट. ये कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉप्स आ चुके हैं, प्रॉब्लम में नहीं है ऐसा कुछ, है ना. यहाँ पे सिंपल इक्वल टू की साइन है, इजंट इट. तो आर यू गेटिंग इट कि किस तरह से हमें उसका सम यहाँ पे मिला, है ना. एकदम इजी प्रॉब्लम है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. चलो
मूविंग फर्दर, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ना इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम एंड इफ यू बिलीव मी इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एज वेल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a raised to 4। किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? a raised to 4 इन द प्रोडक्ट। हमें फाइंड करना है कुछ प्रोडक्ट में जो है 1 प्लस 2a raised to 4 इंटू 2 माइनस a raised to 5 यूजिंग बाइनोमियल थियरम। तो कैसे करेंगे? तो क्या एकदम सिंपल काम है। पहले एक काम करो, 1 प्लस 2a raised to 4 का एक्सपांशन कर लो, है ना? क्या होगा? 4c 0 1 एज इट इज, 4c 1 2a प्लस, लेट मी रब दिस थिंग अप क्योंकि मैं यहां पे जगह थोड़ी यूटिलाइज करूंगा अच्छे से। करेक्ट। सो 4c 2 2a स्क्वायर, 4c 3 2a क्यूब, 4c 4 2a raised to 4। सिमिलरली 2 माइनस a raised to 5 का भी एक्सपेंशन कर लो, 2 माइनस a raised to 5, 5c 0 2 raised to 5, 5c 1 2 raised to 4 a, 5c 2 2 का क्यूब a स्क्वायर माइनस 5c 3 2 raised to 4 a क्यूब प्लस 5c 4 सॉरी 2 का पावर रिड्यूस हो रहा है, 3 से स्क्वायर होगा, 2 इंटू a raised to 4 माइनस 5c 5 2 चला गया a raised to 5। थोड़ी सी जल्दी कर दी हमने ये वाले एक्सपेंशन करने में। क्यों जल्दी कर दी? तो क्या आप पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? 4c 0 1, 4c 1 4, 4 2 जा लेट मी से 8a प्लस 4c 2 कितना होता है? 4 इंटू 3 बाई 2, सो 3 2 जा 6, 6 6 4 जा 24 a स्क्वायर, 4c 3 भी 4 होगा, 4 इंटू 8 8 4 जा 32 a क्यूब एंड 4 का 2 का पावर 4 यानी कि 2 4 8 और 16 a raised to 4। वैसे इसका एक्सपांशन करोगे तो क्या आएगा? तो क्या 5c 0 तो 1 2 raised to 5 यानी 32 माइनस 5c 1 अगेन 5 होगा और 2 raised to 4 16 16 5 सा 88, 5c 2 10 10 इंटू 8 अगेन 80 a स्क्वायर माइनस 5c 3 10 10 इंटू 4 40 a क्यूब प्लस 5c 4 यानी कि 5 5 2 10 a raised to 4 माइनस a raised to 5। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये दोनों जो बाइनोमियल टर्म है उनके प्रोडक्ट में ढूंढना है कि a raised to 4 क्या कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम लग रहा है हमें, है ना? तो देखो क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। 1 प्लस 2a raised to 4 इंटू 2 माइनस a raised to 5, ये कितना आया है? 1 प्लस 8a प्लस 24 a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 16 a raised to 4 इंटू, अब दूसरा ये वाले ब्रैकेट का एक्सपेंशन वो कितना आया है? 32 माइनस 80a प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40a क्यूब प्लस 10 a raised to 4 माइनस a raised to 5। अब अगर आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इट विल टेक अप योर सो मच अमाउंट ऑफ टाइम। हम सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम वैसे ही टर्म को मल्टीप्लाई करके सम में लिख देंगे जिनका पावर a raised to 4 मिल रहा होगा। फॉर इंस्टेंट अगर आपको मैं समझाऊं तो द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 4 in product of 1 plus 2a raised to 4 into 2 minus a raised to 5 is, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 उसको मैं इस ब्रैकेट में इससे सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन एक ऐसा टर्म होगा जिससे मल्टीप्लाई करने से a raised to 4 मिलेगा। सो 1 इंटू 10 a raised to 4 प्लस, अब किसी और से करूंगा 1 को तो a raised to 4 मिलना नहीं है, वैसे ही 8a को किससे करेंगे? माइनस 40 a क्यूब, फिर प्लस 24 a स्क्वायर को 80 a स्क्वायर प्लस 32 a क्यूब को
-88 और देखो a लिखने की जरूरत थी नहीं, बट अभी लिख दिया है, नहीं लिखना है क्योंकि हमें पता है हम a⁴ के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 वाले पावर के सिर्फ हमें तो क्या चाहिए, कोफिशिएंट। तो इट इज गोइंग टू बी 1 × 10 प्लस 8 × -40 प्लस 24 × +80 प्लस 32 × -80 और उसी तरह से प्लस 16। तो 4 और यहाँ पे 0 यानी कि 16 × 32। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करो, 8 4 32, 24 8 सो 24 × 8 करोगे, 8 4 32, 16 and 19 1920 माइनस 32 8 8 2 16 1 24 1 2 56 यानी कि 2560 प्लस 32 × 16 2⁵5 और 2⁴ 2⁹ यानी कि 512। करेक्ट। और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना, जो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। -438। अब देखो इस सब में ना a लगा दो, लेट मी से a⁴, 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 a⁴ और a⁴। सो दिस विल बी -438 a⁴। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो कोफिशिएंट है, कितना मिला हमें कोफिशिएंट, सिंपली -438, है ना। सिंपली क्या मिलेगा, the coefficient of a⁴ is -438। एक काम करते हैं, यहां पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, क्या ऐसा लिख देते हैं, द टर्म कंटेनिंग 8⁴ r, द टर्म कंटेनिंग a⁴ r। इतनी टर्म होगी जिसमें आपको कोफिशिएंट मिलेगा -438, है ना। थोड़ा सा वर्ड्स में इधर उधर हो रहा है, बाकी प्रॉब्लम हमने एकदम एक्यूरेट किया है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। आप आराम से इसी तरह से कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू डू इट इन अ प्रॉपर वे। एम आई करेक्ट? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 14। फाइंड द rth टर्म from the end in the expansion of x plus a⁴n. Now if you look at this expansion, so I can say there will be n+1 terms in the expansion. Correct. अब डिफिकल्टी ये है कि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि rth टर्म जो है वो एंड से कौन सी होगी, है ना। जनरली हम अगर आगे से ढूंढ रहे होते तो r टर्म फाइंड करना हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होती, हम सीधे सीधे लिख देते tr+1, तो वो rth टर्म ही होती है। जनरल टर्म इज आवर rth टर्म ओनली, बट इसने पीछे से मांगी है। करेक्ट। तो पीछे से में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी लास्ट टर्म होगी, whichever is your last term will be the first term for us, last second will be second, last third will be third, ऐसे करके पीछे से rth टर्म कौन सी होगी। तो देखो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं कुछ आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि ऑब्जर्व दैट द लास्ट टर्म is the first term from the end। आपकी जो लास्ट टर्म होगी वो आपके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगी फ्रॉम द एंड। करेक्ट। सो क्या लिखेंगे कि n+1th टर्म इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। आपकी जो n+1 वाली टर्म है वो हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, और n+1 बनेगा कैसे, तो कि वो बनेगा n+1 -1 -1। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या हो गया, है ना। तो आपको पता है कि जब भी हम टर्म लिखते हैं ना, तो अगर इफ इट इज सेकेंड टर्म तो हम r+1 होता है, यानी कि r की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 होके 2 होता है। थर्ड टर्म लिखते हैं तो 2 + 1 3 करते हैं। करेक्ट।
वैसे ही यहाँ पे n+1 में से हमें पहले एक रिड्यूस करना है, करेक्ट। और लेकिन वो एक रिड्यूस करने के लिए हमारे पास टर्म n+1 वाली है, तो और एक रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ समथिंग लाइक दिस। देन ध्यान देना, पैटर्न समझना। देन फॉर द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या हो जाएगी, nth टर्म, है ना, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा लिखते हैं, देन nth टर्म विल बी, nth टर्म इज सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, करेक्ट। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो देखो n प्लस क्या करना है, अब तो n टर्म है ना, तो लेट मी से n ही लाना है, करेक्ट। कैसे लाएंगे n, तो क्या n+1 टर्म में से -2 -1 करो, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, n+1 -1 कट होके n बचेगा। उसी तरह से आई कैन से n-1th टर्म इज थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। तो इसके लिए कैसे लिखोगे, n-1 n+1 -3 -1, करेक्ट। सिमिलरली आर्थ टर्म क्या कहेंगे, सिमिलरली आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी, क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू n+1 r-1, इजंट इट, n+1 r-1। देखो n-1 जो है वो पीछे के साइड से थर्ड टर्म होगी तो 3 -1, n जो है वो सेकेंड टर्म होगी तो 2 -1। वैसे आर्थ टर्म फाइंड कर रहे तो n+1 r-1। अगर आप इसको ओपन करोगे तो दिस विल बिकम n-r+2th टर्म। आपकी अगर आर्थ टर्म एंड से है तो आगे के साइड से कौन सी हो जाएगी, n-r+2th टर्म। सो फ्रॉम द एंड के लिए आप अब इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। सो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा, अवर आंसर इज गोइंग टू बी, क्योंकि हम आर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। टर्म फाइंड करने का मतलब होता है कि हमें पूरे के पूरा एक्सपांशन चाहिए, यानी कि टर्म में Tn-r+2, हाँ, कितना मिलेगा हमें, तो के भाई N-c(n-r+1) एक रिड्यूस कर देना है, सिंपल। पहला टर्म है x, तो रेस टू r-1 और a रेस टू n-r+1। अब आप सोच रहे हो ये क्या हो गया, तो ये वही हुआ है क्योंकि हमने पीछे से लिखा है, तो पीछे से मैं ये वाली टर्म पहले कंसीडर करोगे तो इसका पावर n-r, तो n-r+1, और फिर इसका पावर r, तो यहाँ पे r की जगह पे r-1 है, सो वो r-1। आर यू गेटिंग इट? देखो ये आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला बन गई है कि व्हेनेवर वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस के फाइंड दिस पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपांशन, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप पहले से, करेक्ट, बाई n-r+2 के भाई बोला है कि एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका इंडेक्स n है ना। देखो यहाँ पे अगेन मैं एक बार समझाता हूँ कि आपकी टर्म n+1 है, एक हमें रिमूव कम करना पड़ता है और आपके इंडेक्स के हिसाब से n ही होता है, करेक्ट। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको क्या होगा कि अगर आपका इंडेक्स 10 है और बोला है पीछे से फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे 10 - 5 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7, क्योंकि टोटल 11 टर्म होगी, तो 11 10 9 8 और 7 आगे ना, पीछे से फिफ्थ टर्म और आगे से सेवंथ टर्म। आर यू गेटिंग द लॉजिक? वो ये लॉजिक आपका सेट कर पाएगा। इसकी मदद से अब आप कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अगर मुझे एंड से फाइंड करने हो ना टर्म, तो मुझे इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, n-r+2 टर्म। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी, करेक्ट। सो मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन अ गुड वे, सो यू कैन पॉज इट एंड नोट इट डाउन. Example number 15. Now we did this kind of problem. Again they want us to find the independent of x for this particular expansion. So first of all what we will do, we will write the general one. So 18CR cube root of x. Let me write that as x raised to 1/3
रेस टू 18 माइनस आर इंटू 1/2 टाइम्स x रेस टू 1/3 होल रेस टू r. So 18 CR x रेस टू 18/3 6 माइनस r/3 1/2 रेस टू r में एज इट इज रहने देता हूं, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता. If you take this one up, तो it will be again minus r/3. So for me what is very much important is the power of x. So 6 minus 2 times r/3 into 1/2 raised to r. Now for the independent term, the indices of x should be or must be 0. यानी कि 6 minus 2r/3 0, यानी कि 2r equals to 18, तो r equals to 9. 2r equals to 18, तो r equals to 9. और ये r की वैल्यू 9 सिंपली यहाँ पे पुट कर दो. सो 9 plus 1 10, इट विल बी 18c9. ये 0 हो गया और 1/2 raised to 9. इसे आपको करना है सिंप्लीफाई. इफ यू डोंट वांट, देखो यहाँ पे डोंट वांट का मतलब ऐसा है कि बहुत लेंथी हो जाएगा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने गए तो. करेक्ट. सो योर इंडिपेंडेंट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x is 18c9 into 1/2 raised to 9. This will be your independent term. Are you getting me? चलो, आई होप यू पीपल आर गेटिंग के क्या कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट टर्म बहुत सिंपल सा काम है. वी डिड वन मोर प्रॉब्लम अहेड, है ना. सो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. नाउ लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 16. क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x minus 3/x² raised to m. It is given x minus 3/x² raised to m. मुझे इसके पहले 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम दिया हुआ है 559. फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपांशन कंटेनिंग x³. नाउ देखो ये प्रॉब्लम इजी है, लेकिन इसमें ना 2 चीजें उन्होंने कंबाइन कर दी. क्या कंबाइन कर दिया? तो कि भाई पहले तो आप पहली 3 टर्म के कोएफिशिएंट का सम देखो जो 559 दिया है, यानी कि उससे मुझे m मिलेगा. और जैसे ही m मिलता है ना, उसके बाद मैं जनरल एक्सपांशन लिखूंगा, जनरल टर्म, एंड इन दैट आई विल ट्राई टू गेट पावर ऑफ x इज 3. लेट्स सी क्या करना है. अगर इसकी पहली 3 टर्म लिखे तो द फर्स्ट टर्म क्या होगा? mc0. डेफिनेटली पहले टर्म का कोएफिशिएंट mc0 होगा क्योंकि x का पावर m, इसका पावर कुछ नहीं, है ना. चलो एक काम करते हैं, हम टर्म पूरा प्रॉपरली एक्सपांशन लिख देते हैं. So it will be mc0 x raised to m minus mc1 x raised to m minus 1 into 3/x² plus mc2 x raised to m minus 2 3/x² का पावर 2. क्यों हमने यहाँ पे इतना ज्यादा लिखा प्लस डैश डैश डैश? तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला है कि कोफिशिएंट देखना है, लेकिन कोफिशिएंट में यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना पड़ता है. तो इट विल बिकम mc0 x raised to m माइनस mc1 into 3 और x raised to m minus 3 प्लस mc2 into 9 और x raised to m माइनस, तो स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा तो -6 एंड सो ऑन. और मुझे इंटरेस्टेड क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स का. करेक्ट. सो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है? एक है mc0, एक है -3 टाइम्स mc1 और तीसरा है 9 टाइम्स mc2. गिवन है सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 559, यानी कि mc0 minus 3 times mc1 plus 9 times mc2 is 559. और मुझे इसे सॉल्व करना है.
तो MC0 1 माइनस MC1 M प्लस 9 टाइम M इंटू, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्या आता है, M इंटू M माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 559। अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, M फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू M माइनस 2 फैक्टोरियल। तो M माइनस 1 M माइनस 2 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का 2, तो इसी तरह से इक्वेशन बन जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इस पे से M की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनेगी तो जो भी मिलेगा वो हमें करना है। और M बीइंग अ नेचुरल नंबर बोला है, सो अगर रूट्स मिलते हैं एक से ज्यादा और नेगेटिव होंगे तो हमें इग्नोर भी करने पड़ेंगे, करेक्ट। चलो थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन। क्या होगा, पहले एक सिंपल सा स्टेप मुझे दिख रहा है कि ये 1 को उधर ले लू तो 558, एलसीएम ले लू तो -6m प्लस 9m² माइनस 9m इज इक्वल्स टू 558, है ना, 558 इंटू 2, 550 का डबल होता है 1100 और 8 का 16, तो 1116। आई होप इट इज करेक्ट। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या करेंगे, 9m², 6 और 9 15m, और इसे इधर ले लो तो -1116। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 558 इंटू 2, ऐसा तो राइट ही है, 5 to the 10 ओके। चलो चेक कर लेना चाहिए भाई, गलत हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। Can we say 3 common? If I divide 116 by 3, so 3 3s are 9, 2 बचा 21, 7 और 2, yeah definitely. So 3m² minus 5m minus 372 equals to 0. अब इसके फैक्टर करने हैं 372 इंटू 3 के, जिससे आंसर 5 आए, वो भी नेगेटिव। 372 और 3, कैन आई गो फॉर 3? या डेफिनेटली, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 1 बचेगा, 3 4s are 12, 1, फिर से 3 ले लेते हैं, 4 3s are 12, 4 2s are, ये तो 1 ही चल रहा है, फिर से 3 ले लो, 1 1 बचेगा, 4 2 और 7। इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि -5 आए, 7 2s are 14 या 7 3s are 21, देखो आ गया, 7 3s are 21, 3 3s are 9, 9 2s are 18, क्या नहीं आया, 7 2s are 14, 3 3s are 9, 27 दूर चला गया, तो लेट्स से 3 3s are 9, 9 3s are 9 2s are 18, 18 के हिसाब से 14 में सेट ही नहीं हो रहा है, 7 3s are 21, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई इक्वेशन गलत नहीं आई ना, कुछ तो देखना पड़ेगा, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो गई हो। सो लेट मी चेक वंस, ये उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, 558, एलसीएम लिया 3 2s are 6m प्लस 9m² माइनस 9m और डिवाइड का 2 ऊपर ले लिया, सो इट विल बिकम 116, 9m², 9 और 6 15m और माइनस 116 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकाला, सो 3 3s are 9, 5 3s are 15 और ये हो गया 372। हाँ ओके, चलो एक काम करते हैं, 372 इंटू 3 पहले करते हैं, कितना आ रहा है वो देखते हैं, तो डेफिनेटली 1116 ही आएगा ना, और इसको हम अब सॉल्व करते हैं, तो लेट्स से 372 3 1 2 4 342, am I right? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 3 4s are 12, 3 से क्या, ये 42 थोड़ी आएगा, 124 होगा ही नहीं 3 में, यही गलत है तो फिर कहां से राइट आएगा। चलो 2 से करो, सो 62, 2 से करो तो 31, सो 31 इंटू 1, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, अब आ गया,
सो 3m² माइनस 36 प्लस 31 माइनस 372 0। यहाँ से 3m कॉमन, m माइनस 12 प्लस डेफिनेटली यहाँ से 31 कॉमन निकलेगा क्योंकि ये होगा m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे m की वैल्यू मिलने को आ गई है। क्या आएगा मेरे लिए m? सो आई एम गेटिंग m माइनस 12 एंड 3m प्लस 31 और m पॉजिटिव बोला है तो m इक्वल्स टू 12। अब जैसे ही m की वैल्यू 12 मिल जाती है वो हम कहाँ रखेंगे? जनरल एक्सपांशन में। क्यों? क्योंकि हमें x क्यूब फाइंड करना है। करेक्ट। सो tr प्लस 1 तो m आपका पावर है 12cr। टर्म क्या था आपका? कुछ x रेज टू 12 माइनस r और माइनस 3/x² और इसके पावर में r। करना क्या है? x क्यूब के लिए ढूंढना ना। चलो कोई बात नहीं। 12cr x रेज टू 12 माइनस r और ये x रेज टू माइनस 2r माइनस 1 रेज टू r एंड 3 रेज टू r। तो ये हो जाएगा माइनस 3r। नाउ टू फाइंड द टर्म having x cube, the indices of x must be 3, that is 12 minus 3r equals to 3। 0 थोड़ी ना लेंगे, 3 लेंगे। सो 3r equals to 9 तो r equals to 3। 3r equals to 9 तो r equals to 3। और यही r की वैल्यू 3 आपको बस दिए हुए यानी कि ये जनरल एक्सपांशन में रख देनी है। सो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। सो लेट मी से फोर्थ टर्म विल बी 12c3 x रेज टू 3 डेफिनेटली, है ना। r की वैल्यू ऑड है मतलब नेगेटिव रहेगा फॉर श्योर। सो लेट मी से माइनस 3 का पावर 3, है ना। ये आपका टर्म आ गया। सो द रिक्वायर्ड टर्म इज दिस, है ना। द required term is minus 5940 into x cube। आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक्सपांशन करना है। कुछ करने में डिफिकल्टी नहीं है। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये होगा 27 बट नेगेटिव। 3 से इसको कट कर दो, 9 छोटा हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना। 2 से इसको कट कर दो 6, so it will be minus 11 9s are 99 into 60। 99 into 6 करो 54 5 54 and 5 आ गया ना 5940। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट है कुछ, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा सब इजी है। डोंट वरी अबाउट इट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी, है ना। एकदम सिंपल है, आपसे हो जाएगा। और मैंने किया ही है पूरा सम, कुछ बाकी नहीं रखा है आपके लिए। डोंट वरी अबाउट दैट। करेक्ट। चलो देन लेट्स गो फॉर दी final example of this particular miscellaneous exercise, that is example number 70। अगर coefficient of r minus fifth term and 2r minus 1 term in the expansion are equal तो r find करना है। देखो ये एकदम easy problem है। I guess you people can easily do। देखो expansion है 1 plus x raised to 34। so what will be t r minus 5? तो क्या 34 CR माइनस 4, है ना। और एक्सपांशन 1 प्लस एक्स का है तो x का पावर भी क्या आएगा? r माइनस 4। उसी तरह से दूसरी टर्म बोली हुई है 2r माइनस 1 तो ये होगा 34C2r और x का पावर भी 2r। और हमें कहा गया है कि इनके कोफिशिएंट इक्वल है। सिंस देयर कोफिशिएंट्स आर इक्वल, यानी कि 34CR माइनस 4 एंड 34C2R ये दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है। अब जब भी ऐसे दो कोफिशिएंट इक्वल होते हैं ना तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से या तो ऐसा हो सकता है कि r माइनस 4 इक्वल्स टू 2r, या फिर ऐसा हो सकता है कि r माइनस 4 प्लस 2r इक्वल्स टू 32। दोनों में से जो पॉजिटिव आंसर देगा वो हमारे लिए सही हो जाएगा। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू -4 विच इज नॉट पॉसिबल।
आर की वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है, मतलब यहीं से जो है वो सही आंसर मिलेगा। 2 + 1 3R और 36 हो जाएगा एंड R शुड बी 36/3 यानी कि 12। आपको R की वैल्यू 12 मिलेगी, है ना। ओके, या सॉरी रिड्यूस करनी है, 5 की 6 होगी और ये 2R - 2 होगी। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, माय बैड, थोड़ी हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो चेंजेस में क्या है कि या तो R - 6 = 2R - 2 या फिर R - 6 + 2R - 2 = 34। यहां पे देखो फिर भी होगा वैसा ही, ये R होगा और -6 + 2 तो -4 ही होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है अभी भी, करेक्ट। लेकिन यहां पे इट विल बी 3R -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, 34 + 8 42 यानी कि R = 40। सॉरी दैट वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे 5 गलती से लिख दिया था, 4 गलती से लिख दिया था। गलती इन द सेंस के छोटा करना था तो मैंने छोटे में 5 को छोटा करके 4 लिख दिया, दैट वाज अ मिस्टेक। R - 5 से छोटा होता है R - 6, एक टर्म रिड्यूस करनी है, नॉट ओनली 5 को रिड्यूस करके 4। ये मिस्टेक आप लोगों से भी जल्दी जल्दी में एग्जाम में हो सकती है, सो प्लीज डोंट कमिट दोस काइंड ऑफ मिस्टेक। यहाँ पे तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू मेक इट करेक्ट। सो आई कैन इजीली से कि यहाँ पे हमारी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं एंड विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।